Hello and welcome, my dear Rajeshwarians, friends of class 10 A, B, and C sections. This is once again your English teacher, your friend, philosopher, and guide, Prabhat Sharma, with you once again, highlighting the main points of the last lesson of our course from Footprints Without Feet. The name of the lesson, Bholi. I shall be highlighting the main points today. First, Bholi, whose real name is Sulekha. Bholi actually is a synonym of simpleton, and she is the fourth daughter of Ramlal, who has 7 children, 3 boys and 4 girls, and she is the youngest. Now, who is Ramlal? He is the village Nambardar. Bholi is pockmarked, and is treated as simpleton. Her parents ignore her. Why? When Bholi was 10 months old, she fell off her cot and damaged her brain. And at the age of 2 years, she got smallpox, which left marks on her body. She learned to talk when 5 years old, but she stammered. So what happens next is, a school is opened in the village, and Ramlal is asked by the Tahsildar to send his daughters to the school. Ramlal and his wife believe that sending daughters to school can affect their marriage prospects. However, they decide to send Bholi to school because they think that marrying Bholi, being ugly and pockmarked, would be difficult. So it will be difficult to marry Bholi. Bholi is greatly terrified to be in the school on the first day, but her teacher encourages her and helps her to fight this fear. After a few years, Bholi's parents get a marriage proposal for Bholi from a widower. His name is Bishambar. He is a widower with grown-up children, and he is also lame. On the wedding day, what happens is, Bishambar happens to see Bholi having pockmarks on her face. He demands rupees 5,000 as dowry. Ramlal gives this as Bishambar threatens to walk away from the marriage, from the wedding. Now what happens? There's a twist and turn in the story. This is the main highlight of the story. Bholi asks her father to take the money back. She refuses to marry a greedy widower. Ramlal asks Bholi what she would do now. Bholi tells him that she would work as a teacher in the same school she studied in. She would also serve them in their old age. So, the story tells us how the school education transforms Bholi into a courageous, bold, and capable young woman. The story shows us the importance of education. कहानी की नायिका का नाम तो था सुलेखा, पर सब उसे बुलाते थे भोली। मासूम, पिछड़ी हुई और कम समझदार। शुरू में ही घर में उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, पर उसकी टीचर्स उसमें विशेष रुचि रखती थी। क्यों और क्या भोली टीचर्स की कसौटी पर खरी उतर पाई? आइए जानते हैं इस कहानी में। भोली का जन्म एक छोटे गांव के संपन्न नंबरदार रामलाल के घर में हुआ। उसने पुत्री का नाम सुलेखा रखा। 10 महीने की आयु में सुलेखा पलंग से गिर गई। परिवार ने समझा कि शायद उसके दिमाग में चोट लगी है। उसका विकास धीमा देख सभी उसे भोली बुलाने लगे। जन्म के समय भोली गोरी, सुंदर और प्यारी बच्ची थी, परंतु दुर्भाग्य से 2 साल की उम्र में उसे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स हो गई, जिसके कारण उसकी आंखों को छोड़ सारे शरीर में गहरे काले दाग हो गए।
सर में चोट और स्मॉल पॉक्स के कारण छोटी सुलेखा बोल नहीं पाई। 5 वर्ष की आयु में वह बोली तो, पर हकला हकला कर। गांव के बच्चे उसका मजाक बनाते और उसकी नकल उतारते थे। दुखी हो भोली कम से कम बात करती थी। रामलाल के परिवार में 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे छोटी लड़की भोली थी। रामलाल एक अमीर किसान था, घर में खाने पीने की कोई कमी ना थी। भोली को छोड़ सब बच्चे हट्टे कट्टे थे। लड़कों को शहर के स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया और फिर कॉलेज में। इसके विपरीत रामलाल ने बड़ी बेटी राधा का शीघ्र विवाह कर दिया। दूसरी बेटी मंगला का भी विवाह तय कर दिया। तीसरी बेटी चंपा का वर ढूंढने में लग गया। तीनों बड़ी बेटियां सुंदर और चतुर थीं। उनके लिए अच्छा वर ढूंढना मुश्किल ना था। रामलाल की चिंता का कारण कोई था तो वह थी भोली। कुरूप, नासमझ भोली का हाथ कौन थामेगा। जब भोली 7 वर्ष की हुई तो गांव में पहला प्राइमरी स्कूल आया। तहसीलदार स्कूल का उद्घाटन करने आया तो उसने रामलाल को कहा कि तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए और गांव वालों के आगे मिसाल रखनी चाहिए। उसी रात रामलाल ने अपनी पत्नी से बात की। पत्नी नाराज हो झल्लाकर बोली, अगर लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा। रामलाल तहसीलदार के दबाव में था और उसकी बात टालने का उसमें साहस नहीं था। ये देख पत्नी ने कहा, भोली को स्कूल भेज दो। भोली कुरूप और मंदबुद्धि है, उसका विवाह होने का वैसे भी चांस कम है। उसका भाग्य उसकी टीचर्स पर छोड़ देते हैं। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ के कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। स्कूल क्या है भोली को कुछ पता ना था। कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को इसी तरह ले जाया गया था और बेच दिया था। भोली डर गई। ना 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 हकला कर बोली और हाथ छोड़ा दूर हो गई। रामलाल गुस्से से बोला, अरे बुद्धू, मैं केवल तुम्हें स्कूल तो ले जा रहा हूँ। उसके कपड़ों को देख रामलाल ने पत्नी से कहा कि भोली को साफ सुथरे कपड़े पहनाओ। भोली के गंदे कपड़ों को देख टीचर्स और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए गए थे। बिना ठीक किए बड़ी बहनों के पुराने कपड़े उसे पहना दिए जाते थे। उसके कपड़ों और साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता था। भाग्य से आज उसे साफ पोशाक मिली जो चंपा को छोटी हो गई थी। भोली को अच्छे से नहलाया गया, रूखे बालों में तेल लगाया गया, फिर कंघा फेरा गया। अब भोली को विश्वास हुआ उसे अपने घर से किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। जब भोली स्कूल पहुंची तो बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने भोली को हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ दिया। सहमी हुई भोली डरी निगाहों से आसपास देख रही थी। चारों तरफ कमरों में लड़कियां चटाइयों पर नीचे बैठ किताबें पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को एक क्लास के कोने में बिठा दिया। भोली अपने उम्र की लड़कियों को देख खुश हो गई और उसने सोचा कि शायद कोई उसकी मित्र बन जाए। टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु दीवारों पर लगे चित्र और उनके रंग उसे उत्साहित कर रहे थे। घोड़ा तहसीलदार के घोड़े की तरह भूरा था, तोता हरा था जैसे आम के बाग में, बकरी काली थी पड़ोसियों के जैसी, गाय लक्ष्मी की तरह थी। भोली रंगों में मग्न थी। अचानक टीचर ने पास आकर उसका नाम पूछा। भोली डर गई और बोली, भ भ हकलाने लगी। फिर सिर नीचे कर रोने लगी। उसे पता था सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। तभी स्कूल की घंटी बजी और बच्चे बाहर चले गए। भोली बैठी रही। तभी उसकी टीचर ने बड़े प्यार से उसका नाम पुकारा, भोली। उसका करुणामय स्वर भोली के मन को छू गया। उठो और अपना नाम बताओ। भोली ने पूरी कोशिश की। उसे पता था टीचर उस पर नहीं हंसेगी। बहुत अच्छा, पूरा नाम बोलो। भोली, टीचर ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, अपने मन से डर हटा दो तो तुम भी औरों की तरह बोल पाओगी। रोज स्कूल आओ और पढ़ो, टीचर ने किताब देते हुए कहा। 1 महीने में तुम यह किताब पढ़ लोगी और फिर उससे बड़ी किताब। धीरे धीरे तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। फिर तुम पर कोई हंसेगा नहीं। कोशिश करने पर तुम हकलाओगी भी नहीं और लोग तुम्हें सम्मान भी देंगे।
भोली का मन झूम उठा और आशा की एक नई किरण उसके मन में जाग गई। समय बीता, गांव शहर में बदल गया, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ सिनेमा था, कॉटन ग्रीनिंग मिल थी और सुविधाएं भी थी। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बिशंबर का रिश्ता भोली के लिए स्वीकार कर लें? क्यों नहीं, भोली का भाग्य अच्छा है, उसे अमीर घर का रिश्ता आया है, बड़ी दुकान, अपना मकान और बहुत सा पैसा, दहेज भी नहीं ले रहे। हाँ, पर बिशंबर मेरी उम्र का है, लंगड़ाता भी है और उसके पहली पत्नी से बच्चे भी बड़े बड़े हैं। 45-50 कोई बड़ी उम्र नहीं है। सौभाग्य से वह दूसरे गांव का है और उसे भोली के पॉक मार्क्स और मंदबुद्धि होने का पता नहीं है। ये रिश्ता स्वीकार ना किया तो भोली कुंवारी रह जाएगी। रामलाल बोला, पर भोली क्या सोचेगी? वह बेजुबान नासमझ कुछ नहीं सोचती। बिशंबर एक अमीर ग्रोसर था और खूब बाजे गाजे के साथ विवाह के लिए आया। इतना पॉम्प एंड शो देख रामलाल खुश था और उसकी बहनें मन ही मन भोली से ईर्ष्या कर रही थी। पंडित जी ने भोली को फेरों के लिए बुलाया। भोली लाल साड़ी में आई। बिशंबर ने वरमाला उठाई तो भोली का घूंघट सरकाया गया और बिशंबर भोली के पोकमार्क देखकर रुक गया और अपने साथी से उसने कहा, भोली के पिता को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं ऐसी सूरत वाली भोली से शादी करूंगा। रामलाल ने अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों पर रख दी और कहा, 2,000 ले लो। जब वह नहीं माना तो उसने 5,000 रुपए उसके पैरों पर रख दिए। बिशंबर खुश हो वरमाला डालने लगा तो फिर घूंघट सरकाया गया। अब भोली ने उसकी आंख से आंख मिलाकर देखा और वरमाला को आग में फेंक दिया और बिना हिचकिचाए और हकलाए बोली, पिताजी, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, अपने पैसे वापस ले लो। सब हैरान थे। रामलाल ने अपनी इज्जत रखने को कहा, आपकी इज्जत के कारण मैं इस बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, परंतु मैं इस लालची कायर आदमी को पति स्वीकार नहीं करूंगी। एक बूढ़ी औरत बोली, हमने तो इसे बेजुबान सीधी गाय समझा था, पर ये तो निर्लज निकली। मुझे बेजुबान गाय समझ तुम मुझे इस बूढ़े लालची आदमी के साथ बांधना चाहते थे, पर अब मैं बोल सकती हूँ और बिना हक लाए। कुछ और सुनना है? बारात वापस चली गई। रामलाल सिर पकड़ नीचे बैठ गया और बोला, भोली, अब तेरा क्या होगा? सुलेखा ने धैर्य से कहा, पिताजी, मैं आपका बुढ़ापे में ध्यान करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिसने मुझे शिक्षा दी। सुलेखा ने अपनी टीचर की तरफ देखा। टीचर मुस्कुरा रही थी। उसका मन पुलकित था। शिक्षा के प्रकाश ने भोली को सुलेखा बना दिया था। ये उसका मास्टरपीस था। So, my dear students, this was animation along with the explanation in Hindi. Hope you have understood a lot about the story and you have liked it. Thank you very much. Thanks for watching the video. Goodbye and good luck. Please take care of yourself.